A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new type of the board question which are related to the different chapters of the class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we regularly discussed the important board questions related to the each chapter of part A as well as the part B of the class 12th accountancy. In today's video, we will discuss the important board questions which are related to the dissolution of the partnership form. And you know very well what is the dissolution of partnership form? Dissolution of the partnership form means the partnership form will be closed, their assets will be sold off, and the amount received from the selling of the such assets which help to the paying the outside the liabilities, and balance amount will be distributed among the partner in their ratios. And if there any kind of deficiency arises there, so such amount will be brought by the partners in their particular ratios. So without creating any delay, let's discuss the board questions which are related to the dissolution of partnership form. So our first question of today's video is, this question is asked in All India 2012 compartment. All India 2012 compartment examination. And the question is, Parul, Payal and Priyanka are the partners. They decided to dissolve firm and pass journal entries after various assets and the third party's liabilities have been transferred to realization account. So ये जो क्वेश्चन है which are related to the journal entries related to realization account. So this question is related to the journal entries related to the realization account. You know very well, at the time of the dissolution of partnership firm, first of all we transferred all the assets to the realization account, and secondary we have to transfer all the external liabilities to the realization account. And after that, the first transaction is, there were total debtor of 76,000, total debtor is 76,000. Provision also stood in the books is 6,000. So you know very well, debtor will be transferred to the realization account in the debit side, and provision is transferred to the in the credit side. Question is, debtor amounting to 12,000 proved bad and balance amount due. यानी पूरा पैसा मिल गया. So you can see that we have to receive which amount? Total debtor will be of 76,000, and out of them 12,000 is the bad debts. So the remaining value will be of 64,000. 64,000. Number second, Parul agreed to pay off her husband loan. Parul is a partner. उन्होंने कहा मैं अपने हस्बैंड का क्या करूंगी, लोन पे ऑफ करूंगी. 7,000 agreed at a 5% discount. So in this situation, it is also a pay of the liabilities. So realization account debit to Parul capital, क्योंकि पारुल ने कहा कि हम अपने हस्बैंड का लोन पे ऑफ करेंगे. So the entry will be realization to Parul's capital in the of the amount is 7,000. Creditor की वैल्यू है, and 5% is discount 350, 6,650. Number third, a machine which was not recorded in the books was taken over by Payal at rupees 3,000. एक मशीन था जिसे हमने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, 3,000 रुपए का पायल ने ले लिया. Whereas its expected value was 5,000. देखिए सिंपली बात है, वो बुक में तो रिकॉर्ड है नहीं, तो 5,000 से 3,000 में ले रहे, फायदा हो रहा है नुकसान इससे कोई लेना देना नहीं. हाँ ये मानेंगे कि 3,000 रुपए का एसेट्स कौन ले रहा है, एक पार्टनर ले रहा है. तो सिचुएशन में it is in profit on the realization, and कौन ले रहा है ये assets will be taken by the Payal. So Payal's capital account debit to realization, unrecorded assets हैं कितने में 3,000.
अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹4,000 वॉज ऑल्सो डिस्चार्ज, यानी आपने कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पे ऑफ की। ओके, सो यू नो वेरी वेल कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है तो लायबिलिटी, सो ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और पैसा गया टू कैश एंड द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज 4,000, जो प्रोवाइडेड नहीं थी, जो पता नहीं थी, तो रिलेशन के लिए लॉस है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। Number 5 is the firm had a debit balance of 27,000 in the profit and loss account and that date of the dissolution के डेट में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है यानी लॉस है, तो उसे तीनों क्या करेंगे, पारुल, पायल और थर्ड पार्टनर का नाम है पारुल, पायल एंड प्रियंका, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितने का प्रॉफिट है, 27,000 का, इक्वली 1/3 यानी 9,000 एंड नंबर 6 प्रियंका पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 आउट ऑफ हर पॉकेट। प्रियंका ने अपने पॉकेट से 15,000 रुपए रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर किए एंड सी वॉज गेट अ फिक्स्ड रेम्युनरेशन ऑफ 18,000 फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस। उसे डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए कितना फर्म दे रही थी, 18,000, और उसने अपने पॉकेट से कितना खर्च किया, 15,000 रुपए। तो यू नो वेरी वेल फर्म के लिए कितना लॉस है, फर्म के लिए टोटलिटी में अगर हम देखें तो फर्म, और लिखा है आउट ऑफ हर पॉकेट एंड सी वॉज गेट अ फिक्स्ड रेम्युनरेशन ऑफ 18,000 फॉर कंप्लीटिंग द 18,000। सो नंबर 6 एज यू कैन सी दैट कि 15,000 रुपए अपने पॉकेट से खर्च किए और 18,000 रुपए उसे क्या मिलने वाला था, रेम्युनरेशन मिलना था। थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा सोचिए कि प्रियंका ने अपने पॉकेट से समथिंग अमाउंट स्पेंड किए और उसे इतना पैसा मिलना भी था, तो यहां इसका मतलब उसे दो पैसा मिलना। एक, उसने अपने पॉकेट से कितना खर्च किया, 15,000, और रेम्युनरेशन कितना मिलना चाहिए, 18,000, तो टोटल उसे कितना मिलना चाहिए, 33,000। यानी इस सिचुएशन में रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और प्रियंका का कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा। उसने अपने पॉकेट से कितना खर्च किया, फर्म ने तो नहीं दिया ना उसे ऐसा भी इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय हर। अगर बॉर्न लिखा होता, जैसे मैं कहता कि मुझे मिल गया रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करने, उसके लिए फर्म मुझे दे रही है 18,000 रुपए, सिंपल सी बात, ठीक, और मैंने अपने पास से खर्च किया 15,000, तो फर्म अभी अब और कितना देगी हमको, भाई 18,000 देना था उसे, और मुझे रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करना था, तो 18,000 ही देगी फर्म। उससे वो आप कितना खर्च करो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ कह रहा है ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस बियर किसे करना था, फर्म को या पार्टनर को, तो हम ये मान के चलते हैं कि फर्म को बियर करना था। जो 15,000 उसने खर्च किया आउट ऑफ हर पॉकेट, वो भी फर्म को बियर करना था, और फर्म को 18,000 उसे रेम्युनरेशन भी देना था। सो 33,000 इज एन लॉस ऑन रियलाइजेशन, सो इट विल बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इन तरह के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी होता है। आइए एक और क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड दिस क्वेश्चन is 1 marks and this question is asked in the year 2012, 1 marks में ही आया था। Question is, there was an old computer which was written off in the books of account in the previous year। एक कंप्यूटर था जिसे प्रीवियस ईयर में हमने राइट ऑफ कर दिया था, मान लिया था कि उसकी कोई वैल्यू नहीं। The same has been taken over by the partner Nitin 3,000। उसे नितिन ने, यानी जो पार्टनर था, 3,000 में ले लिया। तो एक एसेट जो हमारे बुक में रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी वैल्यू 0 है, और उससे पार्टनर ले लिया कितने में, 3,000 रुपए में। आपको ये मानना है कि फर्म डिसॉल्व हो रही है, जनरल एंट्री क्या होगी,
तो यू नो वेरी वेल, जब कोई ऐसी एसेट जो रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में और उसे किसी पार्टनर के थ्रू ले लिया जाता है, कोई पार्टनर उसे ले लेता है, तो सिचुएशन में यू नो वेरी वेल ये इट इज एन प्रॉफिट एंड पार्टनर्स की कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का नाम है नितिन, सो एंट्री विल बी अ नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में ले लिया, 3,000। तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसको बोलेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकिंग ओवर बाय पार्टनर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स, और ये क्वेश्चन तो आपका 6 मार्क्स में आता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस। ठीक है, so let's we move to the next question. So let's we discuss the next question which are already asked in the 2014. That is an X, Y, Z are the partner in the ratio of 3:2:1. And on 31st March their capital was 45,000, 30,000 and 15,000. And capital of the X, Y, Z is 30,000, 45, 30 and 15,000। क्रेडिटर 20,000 के थे। फॉर्म डिसॉल्व हुई उस डेट को। वाई टूक अप द स्टॉक एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ ₹25,000। वाई ने स्टॉक ले लिया 25,000 का, एक्स ने ले लिया 25,000 में, फर्नीचर ले लिया वाई ने 5,000 रुपए में, और जेड ने ले लिया डेटर 18 या 500 रुपए में। आपको जनरल एंट्रीज बतानी है एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और आपको नेसेसरी अकाउंट बनाना है। तो सिचुएशन में आप अगर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे सिचुएशन में, सो हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर, दे आर 3 पार्टनर्स, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या राइट डाउन करते हैं, ओपनिंग बैलेंस, एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्स वाई जेड इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, दैट इज इन 45, 30 एंड 15। 45, 30 एंड 15। ओके, फिर उसमें यह भी लिखा है क्वेश्चन में कि क्रेडिटर्स थे इतने के थे, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई जिसमें एक्स ने स्टॉक कितने में लिया, 25,000 रुपए में। तो ये सब उनके लिए बियर करना पड़ेगा टू रियलाइजेशन। एक्स ने स्टॉक कितने में लिया, 25 में। वाई ने भी एसेट्स टेक ओवर की है, वाई ने स्टॉक एसेट्स कितने में लिया, 5,000 में, और डेटर ने कितने में लिया है, 18,500। ये दूसरी बात। तीसरा और सबसे छोटी चीज है जो आप मिस्टेक करोगे, यहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना पड़ेगा रियलाइजेशन। तो उसके लिए आप वर्किंग नोट की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो। सबसे पहले आप जब एसेट्स की वैल्यू निकालोगे इस क्वेश्चन में, एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ओके, कैपिटल कितनी है, 45, 30 और 50। ये हो गया 45 प्लस 60, 60 और 30 कितना हो गया, 90,000। एंड लायबिलिटी मींस क्रेडिटर, क्रेडिटर आपके कितने के हैं, 20,000। सो आपकी एसेट्स हो गई 1,10,000। अब जब आप रियलाइज्ड वैल्यू निकालो सारी एसेट्स की, क्योंकि यहां ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में कि कैश भी है या जो भी है वॉटेवर, तो हम एज्यूम कर लेते हैं नहीं है। सो जब आप रियलाइज्ड वैल्यू निकालोगे तो आप खुद देख लो, 25, 5, 30, 30 और 18 कितना हो गया, 30 और 18 कितना हो गया, 48,500। अब 1,10,000 की चीज 48,500 में रियलाइज हुई, तो लॉस हो गया ना आपको रियलाइजेशन में। सो जो भी लॉस होगा, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, कितना आया, डिफरेंस इन दोनों का। ओके, एंड ये जो डिफरेंस है 1,10,000, 48,500, यही आपका लॉस होगा। एंड लॉस कितना हो जाएगा, 0,051, एंड दिस विल बी 10, 61,500। 61,500 को हम क्या करेंगे,
3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर इधर कम पड़ेगा तो बाई बैंक के थ्रू, और इधर कम पड़ेगा तो टू बैंक की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा सा फंसाने के लिए पूछे जाते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा आप, ये आपके साइट पर है। So let's we move to the next question. Next question is related to the preparation of realization account, partners capital account and the bank account. Question is, Jay and Soumya are the partners in the ratio of 3:2, and following is the balance sheet, and the firm is dissolved on 31st March 2017. Close the books of the firm with the following information. So आपको क्या बनाना है? First of all you have to prepare the realization account, and for the preparation of realization account, you know very well, first of all you will transfer all the assets and the external liability to the realization account. So the first assets is stock 1,07,500 to stock 1,07,500. Debtors 1,21,500, on which the provision, that is a provision for bad debts, is rupees 500. Fixed assets 1,36,500. The last one is capital. It will not transfer to the realization account, and the creditors, it will be transferred to the credit side of the realization. So आपने क्या किया? पहले सारी assets को transfer कर दिया to the realization account, as well as the external liability को भी क्या कर दिया? realization account में transfer कर दिया. After that we take the few adjustment. The adjustment number one is debtor realized at a discount of 5%. So realization of the assets will be in the credit side of the realization account. So by bank, debtor से कितना realized हुआ? Question says that debtor से 1,21,500 है और 5% discount पे realized हुआ. So the value of the debtor which is to be realized, that is in 1,15,425. नेक्स्ट वन इज अ स्टॉक. स्टॉक के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में? स्टॉक रियलाइज एट 1,27,000. स्टॉक 1,27,000. रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 2,500. सो टू बैंक फॉर realization expense, and the value is 2,500. The next will be a creditors are paid in full to bank. Creditors को आपने पूरा पे किया, and the value is 1,48,000. Fixed assets realized at 1,42,000. So total realization value of the assets, that is a 1,15,425. Stock is 1,27,000 and fixed assets is 1,42,000. So total assets realized worth rupees 3,84,425. Okay, so after that हम लोग क्या करते हैं? Debit side and credit side of the account will be totaled and find out the profit or loss on the realization. So credit side जब add किया, so we have to find out in the total of the credit side is 5,32,925, whereas the debit side is also 5,32,925, and it will be a profit on realization. Realization पे प्रॉफिट कितना आया? 16,925, जिससे J and S में
डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो एंड द रेशियो इज 3:2. इट मीन्स 3/5 एंड 2/5. सो उनका रेशियो कितना आया? उनका रेशियो आया, शेयर आया 10,150, 5 and 6,770. And after the preparation of the realization account, we prepared the partners capital account. So how many partners are there? There are 2 partners. That is in J and S. J and S. First of all, we write down the opening capital by balance BD. And the opening capital was of this question is for J 130,500 and for S 2,11,500. The realization पे हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट. सो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन J and A, J and S. That is in 10,155, 6,770. And after that, we write down the reserve fund by reserve. And you know very well, reserve will be distributed by old partner in their old ratio, and the ratio is 3:2. So the reserve 8,100 for J and 5,400 for S. इतना उनको मिला. किसी भी पार्टनर ने कोई भी एसेट्स टेक ओवर नहीं की है, सो उससे कोई लेना देना नहीं है. एंड आफ्टर दैट, एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, हम पूरा का पूरा पे आउट कर देंगे टू J एंड S को. J को पे करना है 1,50,755. कैसे निकलेगा? जब आप इन सारी चीज आइटम्स को ऐड करोगे तो आ जाएगा J को कितना पेमेंट. एंड फॉर S हमें कितना पे करना है? 223,670. ओके, सो ये आपने ऐड कर दिया. ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड आफ्टर दैट, after preparation of partners capital account, we prepared at the end of this question is bank account. In the bank account or cash account, first of all we write down the opening balance which are given in the question, that is an 1,40,500. एंड अगर इस साइड बैंक है तो उसे हम डेबिट में पोस्ट करेंगे, इस साइड बैंक है तो क्रेडिट में पोस्ट करेंगे. तो इधर पहले बैंक लिखा, किस नाम से? रियलाइजेशन के अकाउंट से आया है पैसा 3,48,420 एसेट्स का. और पैसा कितना गया? रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से पैसा गया आपका 2,500 और क्रेडिटर्स के लिए गया 1,48,000. ठीक. और आपने फाइनली पार्टनर्स को पे भी किया है, J को भी और S को भी. J को पे किया आपने 157.55 और S को पे किया है 223,670. उसके बाद आप क्या करोगे? टोटल कर दोगे. एंड एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन वी फाइंड आउट दी बोथ द साइड ऑफ द बैंक अकाउंट विल बी इक्वल. सो 524, 925 and 524, 925 is the total of bank account. And this certified that कि आपने रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाया है, कैपिटल अकाउंट जो बनाया है, बैंक अकाउंट जो बनाया है, वो सब का सब पूरी तरह से करेक्ट है. एंड वन मोर एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू कि देखिए, जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट की बात करते हैं या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं या बैंक अकाउंट की, तो दे आर इंटर रिलेटेड. रियलाइजेशन अकाउंट से आपको पता चलेगा कि आपने जो एसेट सोल्ड आउट की, लायबिलिटी पे ऑफ की, उसके बाद पार्टनर्स के लिए कितना बचा. फिर पार्टनर्स कैपिटल में हम ये बनाते हैं कि पार्टनर्स को कितना देना है. ओपनिंग कैपिटल लिखा, रियलाइजेशन में अगर प्रॉफिट है तो उनको मिलेगा, लॉस है तो वो बियर करेंगे, और अगर रिजर्व है, किस तरह का कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज है, तो वो उनके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगा. एंड फाइनली दे विल पेड ऑफ. एंड लास्ट, बैंक अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि जितना पैसा हमारे पास था उसमें से कुछ पैसा हमें और मिला रियलाइजेशन से, लायबिलिटी का पैसा गया, अदर एक्सपेंस का पैसा गया, पार्टनर को पे ऑफ किया, तो फॉर्म में 1 रुपए भी नहीं बचना चाहिए.
इसीलिए बैंक अकाउंट टैली किया जाता है जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट, कि हमने जो भी एडजस्टमेंट किया है, जो भी हम लोगों ने चीज़ों को रिकॉर्ड किया है, ऑल द थिंग्स आर करेक्ट. So let's we take the one short answer type question which having a 1 marks. कुछ एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, 100% इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं. So please note down the solution of this question in your copy properly. So next question, जो क्वेश्चन 2018 में आ चुका है कि there are two partners, Komal and Tanisha, and their ratio is 2:1, and उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात दी हुई है कि सारे एसेट्स ट्रांसफर की लायबिलिटी आपको जर्नल एंट्री पास करना है. सो पास जर्नल एंट्रीज, आपको एंट्रीज पास करना है. द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज वेरी क्लियर. कोमल वॉज गेट रेम्यूनरेशन 10,000 फॉर कंप्लीटिंग the dissolution process. She also agreed to bear all realization expense. Realization expense of rupees 8,000 paid by her from firm's cash. So realization expense हुआ 10,000 रुपए का, उसको रेम्यूनरेशन मिलना था. उसने खुद के पॉकेट से कितना दिया? 8,000 रुपए. So entry very clear, that is an realization account debit to कोमल्स कैपिटल, क्योंकि फर्म को कितना देना था कोमल को डिसोल्यूशन के लिए? 10,000. सेकेंड, इट इज वेरी क्लियर. तनीषा वॉज टेकन फर्नीचर 12,000, डेटर टू 8,000 एट 6,000. डेटर था 8,000 का, लिया 6,000 रुपए में, और तनीषा ने क्या लिया? 12,000 रुपए. तो तनीषा ने टोटल कितने का लिया? 6,000 और 12,000. सिंपल सी बात मैं कर रहा हूं. सो तनीषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्या क्या लिया? 12,000 रुपए का फर्नीचर और 6,000 रुपए में डेटर. नेक्स्ट, नंबर थर्ड. Number third is creditor 20,000 accepted, plant valued 18,000 in full settlement of their claim. creditor 20,000 के थे, जिन्होंने प्लांट ले लिया 18,000. 2,000 रुपए का फायदा हो गया कि नहीं हो गया? तो एक तरह से आप कह सकते हो कि 18,000 रुपए का प्लांट गया. किसने ले लिया? क्रेडिटर्स ने. सो इसकी एंट्री कोई भी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है जब किसी लायबिलिटी से लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हम एसेट्स का यूज करते हैं, मतलब एसेट्स को दे दिया टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती. नेक्स्ट है, इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर 30,000. इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड किया 30,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है. सो कितने का इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड किया? 30,000. Number fifth will be there was an unrecorded fixtures which was taken over by Komal. कोमल ने क्या ले लिया? अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ले लिया. तो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर लिया तो कोमल्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट टू रियलाइजेशन. फर्नीचर ले लिया, कितने का लिया उसने फर्नीचर? द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज 2,500. Next is point number 7. Point number 7 is बिल्स पेबल है 10,000 रुपए का, जिसे डिस्चार्ज किया गया 5% डिस्काउंट पे. तो बिल्स पेबल 10,000 रुपए का था, जिसे आपने डिस्चार्ज कितने में किया? 5% डिस्काउंट पे. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने का था? फिक्स बिल्स पेबल 10,000 का, उस पर 5% डिस्काउंट कितना हो गया? 500. सो ये हो गया आपका 9,500 पे आपने पे ऑफ किया. नंबर 7 एंड द लास्ट, कोमल एग्री टू पे हर हस्बैंड लोन. कोमल ने कहा कि हम अपने हस्बैंड का लोन पे ऑफ करेंगे 45,000 रुपए. सो यहां पर क्या होगा?
realization account debit to कोमल्स कैपिटल, क्योंकि जब कोई लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो कोमल की कैपिटल क्रेडिट होगी और एसेट टेक ओवर करता तो कोमल की कैपिटल डेबिट होगी। सो कितने की लायबिलिटी उसने टेक ओवर की? 45,000 टेक ओवर, मतलब उसने कहा कि मैं पे करूंगा फिर, ठीक है। तो ये कुछ 7 एंट्रीज पूछी गई थी सीबीएसई 2018 में, विच हैविंग अ 4 marks for the examination, 4 to 5 marks. So in today's video you can see that we discuss a lots of the question which are related to the dissolution of the partnership firm, and I hope today we cleared all the topics and all the questions very easy. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.